اپنے خیالات کا اظہار سنیں گے. جناب یہ سال جی موضوع تو بہت ہی ڈیسنٹ موضوع ہے. میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تو ایسا خیال نہیں تھا کہ شاید مجھے اس موضوع پر بولنا ہے، لیکن کیونکہ موضوع جو ہے وہ آلریڈی بڑے کلیئر ہوتے ہیں ان پر، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اس لیے بھی اس میں مطلب ہے کہ اس لیے نہیں محسوس ہوتی کہ کیونکہ یہ جو میں سوچ رہا تھا کہ تحریک ترقی انسانیت اتنی کیوں پیش آئی. یعنی انسانیت تو بذات خود ترقی ہے. یعنی انسانیت، یعنی اگر انسانیت کے لیے کوئی موومنٹ کی ضرورت ہے تو انسانیت تو بذات خود بہت بڑی موومنٹ ہے. لیکن آخر ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ یعنی جو ترقی ہے، ترقی کے لیے ترقی کے بارے میں سوچیں. آخر انسان اتنا پستی میں کیوں جا چکا ہے؟ کیا انسان پستی انسان کا مقدر ہے؟ کیا انسان کو پستی یعنی پستی کے لیے یعنی مطلب اسے یعنی جہان میں لائے تھے؟ انسان تو بہت عظیم تھا، لیکن آخر کون سی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی پستی اس کا مقدر بن گیا ہے؟ اور پھر آپ جیسے لوگوں کی سہارے کی کیوں ضرورت پیش ہے انسانیت کو؟ کیا انسانیت کو جب انسانیت اس لیول پر یعنی وہ دلدل میں جا چکی ہے تو اسے مطلب اب ہم کس لیول پر یعنی اسے لائیں گے؟ لیکن بہرحال کیونکہ اب مجھے سارے موضوع آج مطلب ٹچ نہیں کرنے، آج بڑا سیدھا سا موضوع ہے اور بڑا سادہ سا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یعنی تینوں چیزوں کا ایک ہی مجموعہ ہے. اگر ان کی طرف دیکھیں، ترقی کی طرف دیکھیں، انسانیت کی طرف دیکھیں، تحریک کی طرف دیکھیں، آرگنائزیشن کی طرف دیکھیں، اتحاد کی طرف دیکھیں، یقین محکم کی طرف دیکھیں، تنظیم کی طرف دیکھیں، تو یہ سارا جو فلسفہ ہے کرسچینٹی کی طرف لے جائیں، یعنی مسلمان کی طرف لے لیں. مسلم یعنی پکا ایمان والا، یعنی آپ کرسچینٹی کی طرف یعنی جس بھی مت کی طرف آ جائیں. یہ تو یعنی ایک یعنی بیبلیکلی جو یہ سارا سسٹم ہے سیٹ کیا ہوا. آپ مذاہب لے لیں، مذاہب کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی سارا معاملے اگر ہم اس فلسفے میں جاتے ہیں تو پھر بے شمار. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ آپ کو کیوں خیال اتنی دیر بعد آیا؟ آخر اس سے پہلے کیوں نہیں آپ کو خیال آیا؟ یعنی کتنا ڈیسنٹ اور خوبصورت نام ہے. اس میں فرقہ واریت کوئی نہیں ہے، اس میں مذہب، نسل، رنگ کا کوئی یعنی انسانیت، یعنی کتنا ڈیسنٹ انسانیت، ہیومنز رائٹ. یعنی ہم کون وائلیشن کرتا ہے؟ ہیومن رائٹ ہم خود وائلیشن کرتے ہیں. کون ہے؟ باہر سے کوئی آتا ہے؟ یعنی کون آتا ہے؟ خود یعنی رولز کے وائلیشن ہم خود کرتے ہیں. خود ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو، ہم ضابطوں کو توڑیں گے. آپ توڑیں گے، آپ ضابطے بنائیں گے، ضابطے بھی آپ بنائیں گے، توڑیں گے بھی آپ. منشور بھی آپ کا ہوگا، منشور کے آپ یعنی ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، منشور میں یعنی سب کچھ. ہم لوگ ہیں جنہوں نے آج انسانیت کو اس لیول پر ڈیگریڈ کر دیا ہوا ہے کہ ہم بیمار انسان جو بیمار ہے، ذہنی طور پر خود بیمار ہے، اور وہ یعنی بیمار کو تندرست کو استعمال کر رہا. بیمار انسان ہم خود ذہنی طور پر ڈپریسڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم یعنی نسل، رنگ اور مذہب کے امتیاز، یعنی زبانوں کا امتیاز. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ مقاصد تھے کیا؟ یعنی اس وقت کیا مقاصد تھے ہمارے سامنے؟ یعنی اگر 3 لاکھ شہادتیں دینی تھی، ملک بنانا تھا، یعنی 3 لاکھ شہادتیں دینے کے بعد یعنی ہم نے کیا یعنی نسل، رنگ اور مذہب کو ہی پروموٹ کرنا تھا؟ اگر مذہب کو پروموٹ کرنا تھا تو کیا صرف یعنی ہمارے پاس صرف نمائندے مذہب کے جیسالے کی رہ گیا تھا؟ کیا اس کے پاس یعنی ان نمائندوں کی کمی تھی کہ جس کی وہ پریئر نہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس اصل انسان کے جو مقاصد تھے، مقاصد سے وہ ہٹ گیا، جس کی وجہ سے اسے آج یہ مقام آ گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بر وقت، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے. جب ٹھوکر لگتی ہے پھر تیرے ہی در پر آتا ہے. تو یہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان نے ہمیں ایک خطہ دیا ہے. یہ ٹھیک ہے،
कि यानी हिस्ट्री में यानी आप इसकी मिसाल कहीं नहीं दे सकते कि ये खिते में मजहब के नाम पर दुनिया में कहीं भी कोई खिता नहीं वजूद में आया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तजर्बा का समझ लीजिए कि मजहब के नाम पर हमने ये कंट्री हासिल की। उसमें अब हमने किस तरह हासिल की, उसमें स्ट्रगल हमारी कितने परसेंट थी, उसमें कुछ यानी हाथ कितने परसेंट थे, ये एक सारा एक फलसफा। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये आज़ाद हमें हासिल हुआ है, अब आज़ाद हासिल हुआ क्यों, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी को अपनी फितरत और नेचर और महरूसियत और वरासत को नहीं लेकर चलता, आगे कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जितनी मर्जी मुझसे आप नंबर 2 स्पीचें करवा लें, वो नंबर 2 स्पीचें होंगी कि हम ये कर देंगे, अब हम इनकलाब ले आएंगे, यहाँ पर यानी बिजली होगी, ये होगा, पानी होगा। कैसे होगा? यानी जिस कौमों से डोनरों से आप डोनेशन मांगते हैं, उनकी बच्चियां देखें, वो एक एक घंटे आवर का वक्त नोट करते हैं। जब वो यानी अपने फैक्ट्री से बाहर जाते हैं तो पंच कर करके काट जाते हैं। आप यहाँ पर यानी सरकारी नौकरी, हर आदमी सरकारी जॉब में क्यों चक्कर में है? इसलिए कि छुट्टियां करेगा हर बंदा, यानी वहां पर यानी ठगबाजी लगाई हुई है। आप किस तरह इंसानियत को किस तरह आप किस धारे की तरह लेकर जा रहे हैं? आप इंसानियत को पहले इंसान तो बनाएं, और इंसान कब बनेगा? जब अपने ऊपर फिजिकली अपने ऊपर अडॉप्ट करेगा वो सारा कुछ सिस्टम। अब सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकता, प्रमोट कर सकता है सिस्टम। ये इंसानी फितरत है कि यानी विरासत कोई बात ना कीजिए सालेक साहब, ये विरासत की बात ना कीजिए, मरूसियत, मेरे ब्लड का जिक्र ना कीजिए। क्यों? कि मेरा ब्लड गंदा है, इसलिए मेरे गंदे ब्लड की जिक्र ना कीजिए। जब तक विरासत और महरूसियत को आप लेकर नहीं चलेंगे, आप तरक्की की तरफ गामजन हो ही नहीं सकते। और जो कौमें माजी को मुस्तकबिल की तरफ जाने के लिए माजी को देखना तो बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान का थोड़ा सा, कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, नेशन नहीं बने। नेशन अब तारीखे इंसानियत जो एक नेशन है, ये एक कौम है, एक ब्लड है, एक यानी अलग अलग है, लेकिन लहू का रंग एक है। यदि ये नेशन है, अब उस नेशन को आपने डिवाइड किया है। कोई यानी नेशन को हमने मुल्कों में डिवाइड किया हुआ है। अब पाकिस्तानी नेशन जो है, यानी मैं पाकिस्तानी नेशन तब बन सकता हूं जब मेरा पाकिस्तानी ब्लड होगा। यानी इसराइल का अगर कोई जिक्र करता है कि वो मजहब के नाम पर, वो इसराइल मजहब के नाम पर नहीं है, मजहब तबलीग का नाम होता है। और तबलीग जो है वो दूसरे को तबलीग यानी दे के अपने अंदर उसे यानी वेलकम कहती है। लेकिन इसराइल वेलकम नहीं कहता, क्योंकि इसलिए वो मजहब नहीं है। इस्लाम मजहब है, इस्लाम दीन है, क्रिश्चियनिटी दीन है। ये राह पर लाना चाहता है बूढ़े भटकों को, राह पर लाने, इसमें कुर्बानी का जज्बा है। लेकिन इसराइल एक ब्लड है। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने उस काज को टच किया है, जो काज बहुत नाजुक समझा जा रहा है, जिस काज पर आज लोग फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बरादरीज़म है, यहाँ पर भट्टी इकट्ठे हुए हो सकते हैं, यहाँ पर गिल इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ पर यानी अपना रंगड़ इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ पर यानी अपना यहाँ महाजर इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ पंजाबी इकट्ठे हो सकते हैं, या पख्तून इकट्ठे हो सकते हैं, या यानी यहाँ पर शिया इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ पर सुन्नी इकट्ठे हो सकते हैं, वहाबी इकट्ठे हो सकते हैं, बरेलवी इकट्ठे हो सकते हैं, देवबंद इकट्ठे हो सकते हैं, नक्शबंद इकट्ठे हो सकते हैं, जगड़ालवी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते। आपने इतना बड़ा अजीम, आपने किसने कहा था? क्यों कर रहे हैं? रहने दीजिए, इंसान को पस्ती में जाने दीजिए। ये इंसान यानी पस्ती इसका मुकद्दर नहीं है, लेकिन जाने दीजिए। क्यों? कम औख है, कम औख है, करो कारगवा बारो जुतियां खाओ, प्यारो। ये बहुत मुश्किल काम है। जिन्होंने, आप समझते हैं कि तरीके तरक्की इंसानियत, यानी आपने कभी रॉकफेलर को जानते हैं? कोई जानता है रॉकफेलर को? आप तरीके तरक्की इंसानियत से पहले कोई रॉकफेलर को जानता है? बेडफोर्ड को जानता है? खगावा जापान को जानता है? मौजेतोंग को जानता है? लेलन को जानता है? गांधी को जानता है?
यानी आप यानी मुस्लिम जो है हजरत इमाम हुसैन को जानते हैं, हजरत अली को जानते हैं, यानी आप यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं, हजरत अय्यूब को यानी जिन लोगों ने तरीके चलाई है, जिन्होंने इस दुनिया को लाइट और रोशनी दी है, उनके हशर देखे हैं? हजरत इमाम हुसैन का हशर देखा है? यानी आप हशर तो देखिए, अपना हशर आप भूल ना जाना। हशर हमेशा अच्छे काज के लिए, आप ये कहें कि आपको यानी गुडविल मिलेगी तो कोई नहीं मिलेगी, आप समझे आपको ऑनर मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। आपको जो कुछ मिलेगा इल्जामात मिलेंगे, आपको जो भी मिलेंगे छुरा मार मिलेंगे, आपको ये ऑनर नहीं मिलेगा। झूठियां इस्ता लबदा जेड़ा आशिक नहीं शुदाई है, इश्क दी सब तो वड्डी गली गली रसवाई है। आ गली है, झूठाई है, चोरी है, चक्काई है। यानी अगर तो आप किसी इस मोमेंट को इंसानियत के नाम से मुंसलिक करते हैं तो फिर आप अपनी सजा सामने रख लीजिए। वो ये है कि लोग आपको यानी आपको यानी फट्टे पर भी ले जा सकते हैं। ये नाम ना यहाँ लीजिए, बराए मेहरबानी करके इसको काट दीजिए। इंसानियत की बात ना कीजिए, यानी आप ह्यूमन राइट की बात ना कीजिए, यानी वो कमजोर तबके और मजलूम और डिप्रेस्ड लोगों की बात ना कीजिए। अरे खाना दे खान परोने, आप बड़े बड़े लोगों के नाम लीजिए, अच्छे अच्छे नाम रखिए। ये क्या नाम आपने रखा? ये तो नाम ही बड़ा हिट करता है, यानी मुझ चोरों को तो यानी डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो ये क्यों आप कोई नाम को डिसेंट रख लें, इत्तेहाद रख लें, अंदर छुरे मारे जो मर्जी करें। नाम इंसानियत तो ये तो आपने यानी पर्दा चाक कर दिया है। या तो आपने सारे मज़ाहिब को यानी आप को देखेगा, आपको ये आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज ये नजरसानी कीजिए, इसका नाम को ऐसा रखिए गोलमोल सा जिसे पता न लगे। ये तो बिल्कुल आपने इंसानियत ओपन इंसानियत को काज को लेकर जाना चाहते हैं। बहुत अजीम नाम है, यानी तरक्की है इंसानियत, तारीख तरक्की इंसानियत, यानी ये तो तारीख की भी जरूरत नहीं, तरक्की की नहीं, इंसानियत बजाते खुद बहुत बड़ी तरक्की है। ये रॉकफेलर क्या है? रॉकफेलर की आप लाइफ शायद जानते हैं कि नहीं जानते? रॉक फेलियर था ये, यानी आज दुनिया का सबसे बड़े जो सरमायादार है ये रॉक फेलियर था, ये फेल हो गया हुआ था, ये हर मूवमेंट में नाकाम था। कामयाबी की हुआ करती है, नाकामी दलील रन जाते हैं फरद दिलाने के लिए। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना डारा है उकाब, ये तो चलता है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। रंग लाती है ना पत्थर में गिर जाने के बाद सुर्ख रोता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो ये आपको रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी। आपका सफीना हो सकता है कि किसी भंवर में फंस जाए, लेकिन कामयाबी हुआ करती है ना। लेकिन उसी सूरत में कि अगर तू सही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, खुद ही जो है, मैं कई दफा इसे तकब्बर लोग कहते, तकब्बर नहीं है खुदी, ये तकब्बर नहीं है, खुद ही जो है कॉन्फिडेंस है, एक उसमें यानी विल पावर है, इसमें यानी खुदी में जो एक खुद इत्मादी है, इत्माद है। तो ये एक यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। इसका मतलब क्या है? तू शही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं है तेरा नशे मन का सत्य सुल्तानी तू गुम्बद पर। मैं मुझे टाइम की आपकी पत्नी प्रॉब्लम है, यानी मेरा फलसफा बहुत लंबा चौड़ा हो गया। बार इसको मेरा ख्याल में गोलमोल कर देता हूँ, मंडा पा देना है जी। लेकिन बहरहाल इनू किसी वक्त फिर बुलाओ, क्योंकि तुसी देखो मेरे नाल ज्यादती की ज्यादतियां की कि मैनू कम से कम थोड़ा टाइम ते वधाना चाहिए सी ना, मतलब इन्ना को खुला कि कम से कम तुसी इंसानियत दी यानी मूवमेंट लेके चलना चाहते। कम से कम एक रात ते मेरी स्पीच सुनो ना, घट तो घट एक रात इंसानियत यानी मैं जो फलसफे में टच ही नहीं कर सकिया अजे तो एक ही नुक्ते से महरम से मैं तो एक नुकते भी नहीं अजे छेड़ रहा। तरक्की तो बहुत बाद की गल है, और तरक्की जी है वो पस्ती है। तरक्की जी है इंसान नू पस्ती च लैके जाएगी। ये फलसफा जी तरक्की की है, तरक्की की है कि
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਹ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਆ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਮੁਸਤਹਿਕ ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਵੱਕਾ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫੈਲ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਚਰਚਲ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਟਲਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਹਿਟਲਰ ਮੋਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਡਿਗੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਚਰਚਲ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਵਸੀਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੈਲਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਲॉप ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ वली खान असगर खान नूरानी खान फलाना खान लीडरशिप सब दी अपनी कंट्रोल च सी एक ऐसा रिमोट आया उन्हें सारी जिहड़ी ज़हीन लीडरशिप सी उन्हें सारी नूं एक ना तजर्बाकार लीडरशिप दी बैत करवा दी और उहदे बाद जिहड़े तजर्बाकार सन उन्हां ने ना तजर्बाकार दी बैत करन दे बाद वो लीडरशिप की हुंदी है लीडरशिप रहनुमा हुंदा है राहबर हुंदा है मैं कहना शुक्र करो कि तुसी फखर ना कह सको शुक्र है परवरदिगार मैं सियासतदान है सियासतदान कौन हुंदा है सियासतदान हुंदा है जेड़ा कौम नूं राहबरी करे रहनुमाई करे शुक्र है असीं इस धरती च पैदा होए हैं और तुसी सोचना तुहाडी मजबूरी बन गया होया क्यों तुसी मशरक दी तहजीब दे हो तुहानूं एजाज हासिल है तुसी यानी तुसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भी खूह चों कढण वाले भी मशरक दे सन काफला जेड़ा ताजरां दा आ रहा सी वो भी मशरक दा सी यानी अपना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं पहचानण वाले मजूसी भी मशरक दे सन और ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ यानी हजूर पाक ਦੇ ਜਿਹੜੇ यानी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ यानी ਅੱਜ यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੈਨਾਂ ਦਾਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ यानी ਸਾਡਾ यानी ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ यानी ਜੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਹੈ ईरान मशरक च यानी हम 3 बादशाह जो मशरक है ये सोना मोहर लबान जेड़ा है सारा कुछ असीं नजराने देण नूं तैयार है किहड़ी गल मशरक दी तहजीब दी मिट्टी दे विच कुट के यानी आटे वांगर लव जिहड़ी है ना मुहब्बत दूजे वास्ते जिंदा रहण दी ओहदे च भरी होई है लिहाजा तुहाडी मजबूरी बन गई है तुसीं इहनूं कड्डो बाहर ना कड्डोगे अंदर यानी अंदर स्वैंक लग जाएगी इस वास्ते तुहाडी स्वेंक शुक्र है तुहाडी स्वेंक बाहर निकल आई है नहीं ते अंदर जिहड़ी स्वेंक लगी हुंदी है वो बड़ी खतरनाक हुंदी है वो उत्तों सारी तौर ते बिल्कुल डीप टॉप लगदी है अंदर वो पता लगदा उदों ही जदों इस वास्ते तुहाडी स्वेंक बाहर आ गई है तुहानूं मैं मुबारकबाद देना कि तुसीं इहदे उत्ते खुदा तुहानूं रात दिन इहदे उत्ते स्ट्रगल करन दी मेरे कोल जिद्दां तक ज़ाती तौर ते मैं बड़ा यानी भुल जाण वालियां चों वां लेकिन इस वास्ते कि बहुत वसी यानी हल्का वसी तलकात वसी सोचा ते ओहदे च कई दफा असी इंसान अपनी जिहड़ी ओहदी अपना मगनपन हुंदा ओहदा अपने रांझे च वो किसी वक्त इन्ना मगन रहिंदा है कि उन्होंने दूजे का पता ही नहीं लग रहा कि वो मगन है कि नहीं है लिहाजा साडे रांझे नूं यानी थोड़ी देर लई मैंटली प्रिपेयर करन लई साडे रांझे नूं थोड़ी बहुती चूंडी जरूर वड्ड दिया करना ताकि साडा रांझा चीकण लग पवे साडा रांझा चीकेगा तो असीं तवज्जो रांझे वाल जरूर देवांगे ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ
ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਸਲਤ 'ਚ ਔਰ ਖਸਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰੂਸੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਰੂਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ मेन तो जी कॉलोनी जोसेफ साहब ने मैम ने रिहाना ने नाज साहब ने संधू साहब कोई साहब कुछ मेंबर्स जी ये जी अब जो स्यूंक लग गई है हाँ 3 बजे भी तैयार थे कि हम सालिक साहब को मिले और उन्होंने अपना वक्त निकाला था। आज की हमारी खुशनसीबी है और बहुत अच्छी बातें जो कि वादा तौर से आपने हमारे लिए जिस तरह आपने कहा है कि बलूत आबादी के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इंसानियत के हवाले से उसमें आप क्या करेंगे वो कभी कभी हम ज़रूर घंटी खड़काया करेंगे, चाहे बद्र साहब हैं या वो दोया साहब हैं या मेन मोदी साहब हैं करेगी आपकी वजारत या आपकी ज़ात से, क्योंकि सालिक साहब एक वजारत भी है लेकिन उनकी एक ज़ात इंसानियत के हवाले से है। और अभी बात हो रही थी बसैनिया की, और कभी बसैनिया जा रहे हैं, कभी वो इराक़ जा रहे हैं, कभी ईरान जा रहे हैं। किस हवाले से जाते थे? क्या ये मिनॉरिटी के लोग हैं या किस हवाले से? इंसानियत के हवाले से आप जाते हैं। तो हमारे लिए फ़ख्र भी है, एज़ाज़ भी है आज की शाम कि आप थोड़े वक्त में हमें वक्त दिया, और मैं तहरीक के सब मेंबरान की तरफ से आपका तहे दिल से ममनून गुज़रा और हाज़रीन और सबका दोस्तों का वो जाए। लेकिन अफसोस है कि मैं मुआज़्ज़त ख़्वाह हूँ जो खड़े रहे हैं, जगह नहीं मिल सकी, लेकिन शुक्रगुज़ार हूँ मैं चौधरी हज़ारा साहब का सर्वर बाबूमान में और जितने भी अजीज़ दोस्त साथ आए हैं, और ख़ास तौर से मिस्टर मुझे सॉरी नाम नहीं आ रहा वो जो मिस्टर एल्बर्ट का, मिस्टर एल्बर्ट के पास भी हम जाते हैं या किसी को हम भेजते हैं बहुत अच्छे तरीके से।